So hello and welcome everyone to Industrial Trading Masterclass. In this section, we are going to be discussing about email and cover letter writing. This is one of the very important part of this session because since you have approached an HR, कहीं ना कहीं आपको अपनी जर्नी में HR को ईमेल भेजना ही पड़ेगा. And please understand, if you don't send a good email, it's gonna be creating a huge problem for you. What is the best combination? Best combination is of three things: a good email with a good cover letter with a good resume. Right, what is cover letter we'll be covering in this session. But before I move forward, I have something to share with you which is very interesting and very great. So recently we had a meetup in Dubai, right? This was our first international meetup. You can just see it out, and there were around more than 100 odd students, those who have joined in, and this all are my GR batch students. काफी अच्छा लगा इन सबसे मिलके, बहुत मजा आया, and we celebrated Diwali together, and definitely we will be also very happy once you become a part of our community group. Now, before I move to the email writing session, few things which you need to consider it out, which is going to be really, really important. Now, the first and foremost thing is कि how many types of emails which are going to be there, which we are supposed to write. देखो, generally चार प्रकार के आपके emails रहेंगे. First is very normal email which you are going to be writing in when you are applying for a job. अब इसमें भी further there are two divisions which I'll be doing in. The first is when you are sending an email with some reference. अगर आप किसी ईमेल को भेज रहे हैं with some reference, and second is the email which you are sending normally, right, where you have seen some of the vacancies on the LinkedIn, आपको कोई vacancy दिखी LinkedIn में, और उसके basis पे you are just sending some of the email which is there. Now, what is the most important parameter when you are sending both the type of email? First, your subject line will be changed. Now, please understand, whenever you are going to be sending an email, few basic stuff which you must be aware of since you have done an articleship. That is what I am assuming it. To किसको भेजना है? Very simple, right? You will be writing the person's name. Now, one important parameter whenever you are going to be sending an email, कहीं पे many of the time you will be able to find out the email ID of a person which is given on the mail or a LinkedIn or somewhere your friends have shared it or I have shared it out. कहीं से मिल जाएगा. But many a times you will be finding out in emails through some external sources. Now, there are a lot of websites through which you can find out an email ID. Very simple task what you can do is go on a Google, right, and ask how to extract an email ID from a LinkedIn URL. सिर्फ आपको इतना लिख देना है Google पे, how to extract an email ID using LinkedIn URL. You'll find out a hell lot of websites which are there, right? Do not go into the paid version. There are few free websites which can give you the free email IDs of the people out. First is rocketreach.co. Rocketreach.co. This is one of the website where through which you can easily get the free email IDs of the people out. That is one. Second is hunter.io, right? This is one of the website through which you can get a free email IDs. And third, I have already told you on the LinkedIn, when you're a first connection of someone, अगर आप किसी के first connection बन जाते हैं तो definitely you will be easily able to get a free email ID of that person out. So that is one of the place where you can get it out. Now next, moving to the very, very interesting part. So once I got the email ID, अब email ID मिल गया, अब CC में, now please understand, can we keep the people out in the CC? What is the difference between CC and BCC? BCC में the person will not be a visible person out, ठीक है? CC में दिख जाएगा कि this is the person which is there. Now generally please understand, when you have a reference, अरे भैया कोई चाचा मामा फूफा अपने पहचान का है, रेफरेंस है तो एक एज मिलेगा, तो यू कैन पुट द पीपल आउट इन अ CC. एक रास की बात बताता हूँ आपको, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. तो सिंस आई वेंट टू दुबई, अब दुबई में मेरे को क्या करना था, मेरे को काफी सारे लोगों से मिलना था, कमिटी मेंबर से मिलना था. आई वांटेड टू मीट द चेयरमैन ऑफ ICA. तो मैंने क्या किया, जैसे आपको सिखाया था, आई सेंड अ कोल्ड मैसेज. कहाँ पे मैसेज भेजेंगे कोल्ड मैसेज? सर लिंक्डइन पे. आई सेंड हिम अ कोल्ड मैसेज. व्हाट हैपेंड, पीपल इग्नोर्ड इट बिकॉज ऐसे हजारों लोग लाखों लोग रीच आउट करते हैं. Now what I tried to find out some of the mutual connections कि भैया कोई पहचान का है क्या. I found out one of the central council member or a person who was there, who was also my good connect. So I asked him, why can't you help me introduce with this guy? So I next message I texted him with the reference of the time I did it out. Please understand, reply rate will increase. Golden rule क्या है, ध्यान से देखेंगे, दिमाग में डालेंगे, कलेजे में रखेंगे.
A reply rate of anything will increase. ध्यान से सुनेंगे. A reply rate of anything will increase provided you have a right reference. What you need is one right reference to get into one right company. एक सही रेफरेंस लेके आओगे तो सही कंपनी में जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे. नहीं तो बैठे रहना, रोते रहना. भाई मेहनत कर रहे हो इतनी तो डेफिनेटली विल गेट इनटू दिस. तो व्हाट यू नीड इज अ वन राइट रेफरेंस. अब सबसे पहली बात आती है कि सर व्हेन आई एम सेंडिंग अ ईमेल, राइट, सीसी समझ में आ गया, बीसीसी समझ में आ गया. नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइन. तुम्हारे भाई ने क्या किया, देखो आप एलएमएस में जैसे जाएंगे, वंस यू गो इनसाइड द एलएमएस यू विल फाइंड आउट दिस पीडीएफ. ये पीडीएफ आपको दिख जाएगा. ईमेल राइटिंग 2 पेज का पीडीएफ है. मैंने सिंपल पीडीएफ बनाया. उस पे एंड में देखो एक अच्छा काम किया है, गुड सब्जेक्ट लाइंस फॉर ईमेल एंड जॉब एप्लीकेशंस, है ना. अब इसमें अब डेफिनेटली मैंने अलग अलग टाइप के आपको दिए हैं. व्हिचएवर यू फील्स लाइक इज गुड इनफ फॉर यू, जस्ट कस्टमाइज इट एंड यूज इट आउट. जैसे कि इफ यू हैव डन आर्टिकल फ्रॉम बिग 4, यू कैन से बिग 4 आर्टिकल, right, proven track records in statutory audit application for a XYZ. again you need to customize it. ठीक है. application for जो भी आपका है industrial training in XYZ domain. So again you can put a simple subject line, that is what it is. But if you have a good reference in simple way, referred by, जैसे कि मेरा नाम ले लो शिवम पलन. अब मेरा नाम सबको मत देते रहना, right, but definitely you need to find out someone who is working in a company and who can push your CV. रेफर्ड बाय शिवम पलन, एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. तो जैसे ये रेफर्ड बाय XYZ नेम दिखेगा, पर्सन विल इज गोना बी ओपनिंग इट आउट बिकॉज वो क्या रहता है, एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है. तो दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट एन एज. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है व्हेनेवर यू आर गोना बी डूइंग दिस. तो ये हो गया सब्जेक्ट लाइन व्हेन यू हैव अ रेफरेंस, सब्जेक्ट लाइन व्हेन यू डोंट हैव अ रेफरेंस. अब सवाल आता है हाउ डू यू राइट एन ईमेल. प्लीज इज्जत से देखेंगे. नाउ आई हैव क्रिएटेड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स व्हिच इज देयर. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हेन यू आर पुटिंग आउट एन ईमेल, ईमेल में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसे हाईलाइट करिए. इससे क्या होगा कि अदर पर्सन विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. जैसे मैंने इधर लिखा एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पोजीशन, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर और डियर सर और मैम, व्हाटएवर यू वांट राइट इट आउट. प्लीज भैया नाम पढ़ के समझिए मेल है कि फीमेल है. कि काफी लोग सर को मैम लिख देते हैं, मैम को सर लिखते हैं. भाई फॉर्मेट इज्जत से रखे ना, फॉर्मेट ऐसा गंदू गंदू नहीं चाहिए, फॉर्मेट अच्छा रहना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, I am Shivam Palan, currently pursuing a chartered accountancy course, seeking an industrial training opportunity in domain को आप चेंज कर लीजिएगा according to the where you are applying for. जो मैं दे रहा हूँ उसको टीप मत लेना, भैया सर ने दिया उसको चेप के लिख देंगे, नहीं यार, यूज इट आउट यार, थोड़ा सा कस्टमाइज करें, अपना दिमाग लगाए. नहीं चल रहा है तो बेटा चैट जीपीटी जिंदाबाद, राइट. बट यस, थोड़ा सा जिस तरीके से मैं दे दिया उसको यू कैन जस्ट सी इट आउट एंड ग्लांस थ्रू इट, है ना. आई एम एंथुसियास्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग माय करियर एट कंपनी नेम. अब इसको जानबूझ के मैंने हाईलाइट किया ताकि एटलीस्ट कुछ एज मिले. वेयर आई कैन डेवलप माय स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द टीम. माय एकेडमिक बैकग्राउंड, अब यहाँ पे आप दिखा रहे कि मैं एकेडमिकली स्ट्रांग हूँ. 90% इन बोथ 10th एंड 12th स्टैंडर्ड विद सेट्स अ फाउंडेशन फॉर माय परस्यूट टू द सीए. माय इंटरेस्ट इन फाइनेंस इन्वॉल्व मोटिवेटेड मी, ब्ला 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 ब्ला. आई एम परफॉर्म्ड अ वैल्यूएशन. अब आपने क्या काम किया है आर्टिकलशिप में वो आप हेल्प करें. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर हाईलाइटिंग इट, you need to showcase that कि भैया आर्टिकलशिप में आई हैव लर्नड XYZ which can be help in your organization, राइट. इसमें आप अपनी स्किल सेट्स भी बता सकते हो, एक्सेल का, पाइथन का, कुछ अलग से. और अगर मास्टर क्लास किया है तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो. आई हैव आल्सो परस्यूड इन कोर्स इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, आई हैव परस्यूड अ कोर्स इन FP&A, आई हैव परस्यूड अ कोर्स इन फाइनेंस, राइट, और गॉट अ सर्टिफिकेट इन फाइनेंस which has helped me to get an edge over this. ऐसा करके कुछ बढ़िया सा लिखेंगे. एंड में लिखेंगे प्लीज फाइंड माय रेज्यूमे एंड कवर लेटर. ये चीज आपको करना है. वेरी सिंपल. नाउ इसके साथ साथ सिंसियरली नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये तीनों लिखेंगे. प्लीज राइट डाउन ऑल दिस 3. सर बट ईमेल क्यों लिखना है, बस बोल रहा हूँ इसलिए लिखना है, राइट. तो आपका ये तीनों चीज रहेगा. एक अच्छा सा सिग्नेचर बना ले एंड देन जस्ट सेंड इट आउट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग गोज टू अ वेस्ट. आपने देखो प्रोसेस समझो. पहले आप अप्लाई करोगे, ओके सर, ओके. पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद काफी दिन तक रिप्लाई नहीं आएगा, तो रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या करेंगे बेटा, फॉलो अप मेल भेजेंगे. एवरीथिंग गोज टू वेस्ट इफ यू डोंट फॉलो अप. सर फॉलो अप कितने दिन में करने का, बड़ा सिंपल रूल है. पहला फॉलो अप 3 दिन में, अगला फॉलो अप अगले 7 दिन में. मतलब कि मान लो आज 15 तारीख है, 15 को भेजा, 3 दिन प्रेफरेबली वीकडे, राइट. तो 15 हो गया, 16, 17, 18 को फॉलो अप कर लेना बेशरम समान. इफ यू आर नॉट डूइंग इट, लाइफ का रूल है, समवन एल्स हैव डूइंग इट और डन इट भैया, तो आप फॉलो अप करेंगे. 18 को फॉलो अप करने के बाद कब होगा, 18, 19, 20, है ना. तो अगले फिर 7-8 दिन में इसको फॉलो अप कर लेंगे, मतलब टोटल 7 दिन में. तो अगला फॉलो अप आपका 21 दिन में जाएगा, है ना. दैट इज व्हाट इट इज. इजी पीजी 21 से 22 को, सॉरी हाँ 22 को जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपको फॉलोअप करना है. फॉलोअप नहीं करोगे तो गया बर्बाद. सर फॉलोअप कैसे करना है वो भी आप सीख लीजिए, क्योंकि फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, राइट. अब जैसे कि फॉलोअप इन नेक्स्ट स्टेप. अब फॉलोअप इंटरव्यू के बाद का भी हो सकता है, ईमेल भेजने के बाद का भी हो सकता है, ठीक है. ये मैंने इंटरव्यू के बाद का भेजा है, राइट. इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है. अब मैं इसका एक फॉलोअप मेल बता देता हूँ. पहले मैं दूसरे मेल भी बताता हूँ, फिर मैं साथ में फॉलोअप का मेल भेजूंगा. ये हो गया, सबसे पहले आपने ईमेल भेजा, नहीं आया तो फॉलोअप मेल भेजा. ओके सर,
ये भी नहीं आया तो उसके बाद अब मान लो आपको फिर से फॉलो मेल भेजना है। सर मान लो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, एज एंड व्हेन योर इंटरव्यू शेड्यूल द नेक्स्ट डे और द सेम टाइम, प्रेफरेबली सेम टाइम, राइट आफ्टर इंटरव्यू इज डन, सेंड अ थैंक यू मेल टू एचआर को थैंक यू मेल भेजेंगे एंड सेंड अ थैंक यू मेल टू इंटरव्यूअर। जैसे इंटरव्यू हुआ थैंक यू मेल बोलेगा, भैया थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी फॉर इंटरव्यू, आई एम रियली इंटरेस्टेड एंड पैशनेट टू जॉइन योर कंपनी। अब देखिए किस तरीके से थैंक यू मेल लिखेंगे, शिवम पलन इंटरव्यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, इज्जत से प्यार से लिखेंगे। हाय रोहित, इमेजिन दैट रोहित वाज अ गाय हु वाज टेकन माय इंटरव्यू। तो रोहित को मैंने लिखा, हाय रोहित, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, इट वाज ग्रेट टू लर्न मोर अबाउट अ सीएमओ। सीएमओ मतलब इमेजिन दैट यू आर अप्लाइंग इन अ सीएमओ अबाउट जो भी आपका है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रोल। CMO sounds a great company to work for. Feel free or email or call anytime if you have any follow-up question. Thanks again for your time and have a great day. Simple आपने मेल लिखा कि थैंक यू, मुझे अच्छा लगा, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली एचआर को आप लिख दोगे, एचआर मान लो मीनल है तो हाय मीनल, thank you for so much for arranging my interview with Rohit today. It was great to learn more about a CMO and about a associate accountant role in particular. CMO sounds a great company to work for. I would if you talk to him, very important, if you talk to him, please thank है ना Rohit for me and let him know that I appreciated his time today. तो एकदम से आप मीनल को भी बोल रहे हो, एचआर को भी बोल रहे हो कि अगर आप रोहित से मिले तो उनको बोल देना कि भैया मेरी तरफ से धन्यवाद, मंडल अपना आभारी। If you need anything else from me, please let me know. Otherwise, I'm looking forward to the next step in the process. Simple. फिर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेरी सिंपल, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। अगर मान लो इसके बाद भी एचआर रिप्लाई नहीं कर रहा है, वेरी सिंपल फॉलो अप मैसेज, शिवम पलन इंटरव्यू, फॉलो अप इन नेक्स्ट स्टेप्स। Hi Meenal, HR को भेजेंगे। Generally, you need to follow up with HR because HR is the person who is going to be coordinating everything out. Now, it has been a week since I have talked to Rohit. So I wanted to follow up to see if you need anything else from me. है ना, मेरे से कुछ चाहिए तो बता दीजिए। I am curious if you could give me a sense of a next steps in the process. Generally आप ऐसे फोकस करें कि next step बताओ, which means you are indirectly showing that I am selected और मुझे आप next step बता दीजिए। Thank you for your time. I hope all is well. जानबूझ के ये पूछा है which shows some sympathy. The time you put in sympathy, HR will feel like, oh my god, इतना तो मेरा पति भी नहीं पूछता. This candidate is really nice. So what she is going to be saying? She is going to be saying, oh my god, that's something really great and cool. Email ID, phone number, and this blah 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 blah. Very simple. So I've taught you 4-5 different types of email. Simply you can just also write same type of a follow-up email when you are not getting a response. ठीक है, hi Rohit, right? I'm really interested or just wanted to follow up. है ना, ऐसा करके कुछ तो फॉलो अप करके आप बढ़िया से एक मेल डालिए उनको एंड जस्ट इंश्योर दैट इफ यू डोंट फॉलो अप एवरीथिंग गोज फॉर अ वेस्ट। नाउ सेम वन मोर ईमेल आई हैव गिवन इट टू यू। कहां मिलेगा सर ये सब? बेटा अरे खोलो लो एलएमएस, जाइए खोलिए। और आप बड़ी गलत चीज कर रहे हैं यार, आपने अपने अभी तक के 4 दोस्तों को रेफर नहीं किया। अरे जाइए यार, इतनी मेहनत से आपके लिए कोर्स बनाया है, राइट? अपने 4 दोस्तों को भला कीजिए, आपको भी पुण्य मिलेगा, क्या पता वो आपको मदद कर दे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। हियर यू नेवर नो, द वर्ल्ड इज स्मॉल, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पोजीशन रेफर्ड बाय, मान लो रोहित ने रेफर किया है। डियर हायरिंग मैनेजर, I am Shubham Palan, currently a chartered accountant student. I am excited to apply for industrial training position at Edelweiss. I was referred to this opportunity by. अब देखो इस तरीके से उनको जानबूझ के हाईलाइट कर दिया। Who recommended Edelweiss is an excellent place to young finance professional to learn and grow. Blah 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 blah. अपनी तारीफ करेंगे, डिटेल्स बोलेंगे, बताएंगे एंड में रेज्यूमे और कवर लेटर लगाए, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड डिटेल। इजी पीजी गाइस। अरे बोल दो यार इजी पीजी और नो इजी पीजी। सर बिल्कुल इजी पीजी, मजा आ गया सर, है ना? दिस इज सपोज टू वी आर सपोज टू राइट एन ईमेल। आप खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एज मिलेगा। दैट इज व्हाट इज ईमेल राइटिंग। वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। थोड़ा सा फॉर्मेट पे ध्यान रखेंगे, जो अच्छी चीज है उसे बोल्ड करेंगे। ईमेल शुड बी गुड इनफ, सिंपल इनफ, सोबर इनफ, व्हिच विल मेक अदर पर्सन एक्साइटेड टू रीड। हाईलाइट व्हाटएवर यू आर गुड एट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। बड़ी बड़ी आसान है भैया, बढ़िया, बहुत ज्यादा एक एज मिलेगा। देखो कवर लेटर क्या होता है बेटा? कवर लेटर 3 चीजों के बारे में बोलता है। वाई दिस कंपनी, वाई दिस इंडस्ट्री, वाई यू। भैया क्यों तुमको एडेलवाइस में आना है या क्यों तुमको आईटीसी में आना है? वाई द हेल यू वांट टू जॉइन आईटीसी? ओके सर। वाई डू वांट टू जॉइन से फॉर एग्जांपल आईटीसी होटल? वाई द हेल यू वांट टू जॉइन इन होटल इंडस्ट्री? एंड वेरी सिंपल, वाई यू, वाई वी शुड प्रेफर यू इन द होटल इंडस्ट्री। तो तीनों के आंसर यू नीड टू गिव इट इन अ कवर लेटर, सिंपल। तो वाई दिस कंपनी, XYZ रीजन दीजिए कि भैया मुझे इस कंपनी में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उसका विजन अच्छा लगता है, मिशन अच्छा लगता है, एनीथिंग आउट, यू कैन जस्ट सर्च इट आउट इन गूगल, गो टू द कंपनीज पेज, रीड अबाउट अ कंपनी, एंड टू एंड मैंने एक सेशन में बताया हुआ है आगे, राइट? अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना आगे। तो वहां पे मैंने बताया रीड टू रिसर्च अबाउट अ कंपनी, एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, वहां से विल गेट एन एज। ओके, इसका आंसर मिल गया। वाई दिस इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाइए DRHP पे, राइट? और आप जाइए IBEF करके एक वेबसाइट आती है गवर्नमेंट की, वहां पे आपको इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पता पड़ जाएगा कि व्हाई द हेल यू वांट टू जॉइन इन दिस
And why you का एज कहाँ पे मिलेगा? You will definitely talk about your articleship journey because this is something which I worked in my articleship. This is something which I really like, and hence I want to build my career into this domain. इस तरीके से to put it out. Now, how do you put it out? Again, in the very simple page. Now, cover letter is a separate attachment. Resume is a separate attachment. तो एक मेल हो गया. मेल अब देखो बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है, सिंपल है. एक ईमेल हो गया. इस ईमेल में आपका हो गया टू, राइट. सीसी में अगर किसी को रखना है रख दीजिए. डियर सर मैम यहाँ लिखेंगे, कंटेंट यहाँ लिखेंगे, रेज्यूमे का एक अटैचमेंट, कवर लेटर का वन सेपरेट अटैचमेंट. सिंपल, वेरी सिंपल. सर कवर लेटर कैसा दिखेगा? आई एम गिवन यू द सैंपल कवर लेटर, राइट. यू कैन जस्ट कस्टमाइज दैट कवर लेटर फॉर. अगर आप ये नहीं लिखना है तो हटा देना. सिंपली यहाँ से चालू कीजिए. योर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, लिंक्डइन आईडी, आज का डेट, कंपनीज नेम, कंपनीज एड्रेस, टू हायरिंग मैनेजर और डियर हायरिंग मैनेजर. नाम रहा तो नाम लिख दीजिए. आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट आईटीसी एज अ सीए स्टूडेंट with a strong academic background and a practical experience in accounting, tax and blah 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 blah. जो भी काम किया आपने उसे हाईलाइट कीजिए. I am eagerly bringing an enthusiasm for the, जो भी आपको डोमेन में जाना है उस डोमेन को लिखिए. I am currently role in article associate as a firm. I have gained a valuable experience in the following department. अपना काम को हाईलाइट कीजिए depending on the work you have done. तो इसमें हो गया why you, right? Similarly you put details about why this industry थोड़ा बहुत and why this sector. तो वट एवर गुड यू हैव उसको हाईलाइट कीजिए, सिंसियरली लिखिए. एक सिंपल से पेज में आप उसको अटैच करके कवर लेटर डाल दीजिए. Now whenever you are also reaching out to the people on LinkedIn, hi LinkedIn पे whenever you are going to be reaching out, cover letter भेजिए उन्हें, resume नहीं भेजिए, right? और अगर भेजना भी है तो दोनों भेज दीजिए, but again definitely you can put a cover letter. One more good thing when you are sending a message, मैंने आपको बताया था when you are sending a connection request to someone, you are putting out a message. हाँ जी सर मैं मैसेज डाल रहा हूँ. अब उस मैसेज के साथ साथ आप उसमें what you can do, you can put a Google Drive का लिंक where the cover letter is attached. Easy peasy. अब वो लिंक बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसे कटली से जाके आप बहुत सारे एक्सटर्नल टूल से आते हैं तो लिंक को छोटी कर देने का, तो उससे द लिंक इज शॉर्टन एंड विद इट इज फॉलोइंग इन योर गिवन वर्ड लिमिट सच एज दैट. तो ये सब चीजें आप कर सकते हो व्हेनेवर यू आर गोना बी राइटिंग अ कवर लेटर एंड ईमेल. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, एक सही ईमेल, write a good email with a good cover letter with a good resume will help you to get into the good companies. Please understand this. And understand one thing, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और अच्छा आपका रेज्यूमे बना के कवर लेटर बना के चला जाएगा, तो बेटर यू डू इट. ठीक है, so that's it for today's session. We'll meet in the next session out. Till then, take care, bye and stay safe and don't forget to refer your friends out and do let me know the feedback. यार YouTube पे देख रहे हो तो YouTube पे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, जहां पे भी देख रहे हैं यार LinkedIn पे डाल दीजिए, जहां भी देख रहे हैं बताइए हमें, और don't forget to take the certificate of this course after the course is completed. So GIR was, beyond the expectations. We met so many people, we met so many mentors. CA बनने के बाद सर का सेशन ज्वाइन करने के बाद आधी टेंशन तो खत्म हो गई कि हाँ GIR वाला CA मॉन्क ज्वाइन करने के. I have attended sir's GIR batch number 59 and it was a great session honestly. Honestly, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा मैं पहले का GIR के बाद था, I rate 5/5 because communication skills plus interaction skills plus resume and personality development, almost सब कुछ ही हर एरिया में कवर किया GIR, so it's 5/5. Quality of content that we get to know, all the things were very good. Physical campus कैसे होगा उसका एक थोड़ा सा टेस्ट मिला के. ये बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जो पहले नहीं पता था, कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, ऑफ कैंपस रिलेटेड, जैसे हमको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. सो ओवरऑल वर्थ इट रहा.